call is now being recorded. Yeah, good morning, everyone. Now I'm starting with the trigonometric functions. We already were dealing with this. The latest curriculum is released by CBSE. If you have gone through the same, I must have shared with you, or you must have got it from somewhere else. Now there is a little bit confusion regarding this particular chapter, trigonometry, because as per CBSE, it has been placed in the US second term examination, but there are concepts जो first term में है and they need the idea of trigonometry. तो we already have started with this topic, right? आपकी क्लास में तो अभी बहुत पीछे है. In 11C अभी मेरे इसके बाद ग्राफ, formulas, many things are discussed. So इसीलिए we cannot revert back. We are going to take this in our first term itself. बाकी कुछ चेंज होगा फिर वो you will be informed. तो ये हमारा रहेगा बिल्कुल. So we were discussing about the problem solving. We discussed the questions like this, and they were given to you in your homework. When one of the trigonometric functions value is given, and then we need to find out the value of all 5 trigonometric functions, and we cannot use the triangle method here as it's our functions, so it can be negative also. So based on the quadrant, in which quadrant my x lies, we did observe that this is the your rule. First quadrant all positive, second quadrant sine and is reciprocal. Cosecant is positive, third quadrant tan is positive, and of course then its reciprocal is also positive. Fourth quadrant cos का होता है, तो cos and its reciprocal secant are positive. और बाकी वैल्यूज निकालने के लिए यू माइट बी रिक्वायरिंग द यूज ऑफ सच फार्मूलाज. तो जो आपने 10th में इस तरह के फार्मूलाज पढ़े थे, दे विल बी रिक्वायर्ड टू बी गेट यूज्ड हियर. सो आई एम श्योर इस तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी आप कर चुके हैं. आई विल नॉट डिस्कस दीज क्वेश्चंस नाउ. वेरी बेसिक एंड फंडामेंटल क्वेश्चंस. फर्दर जो अब हम बात करेंगे वो होगी अबाउट गेटिंग द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑन सर्टेन स्टैंडर्ड एंगल्स. टिल क्लास 10th our standard angles were only acute angles, 0 degree, 30 degree, 45, 60 and 90 degree. But now since we have learned about the positive angles, we have learned about the negative angles, and the angle goes beyond 90 degree, even beyond 360 degree, and so on and so on. So we can have angle of any degrees. So how we will be getting the values of trigonometric functions in such cases? For that, do remember the following rule. We have the value of sine. It get repeated after every interval of 2n pi. Same way it is applicable for the cos, and when we talk about in terms of tan, it becomes n pi plus alpha. Many of the things and the idea will be clear when we consider the graphs of these functions, but this is the basic fundamental rule we require. Then we have certain formulas. If you quickly recall, sine n pi is always 0, cos n pi is minus 1 raised to the power n, tan n pi is 0, cos of odd multiple of pi by 2. Cos at every odd multiple of pi by 2 is always 0. So these are another set of formulas which are going to help me to get the values of trigonometric functions. And yes, of course, the table which you did in your 10th class, likewise sine 45 degrees or sine pi by 4, that is 1 by root 2. So these values will be again required. Consider a case, let's say we have to find the value of sine of some specific angle is given to me, say sine theta, right? What we will do?
यहाँ मैंने स्टार्ट करा है बाय टेकिंग साइन. इट कुड बी एनी अदर 5 फंक्शंस एज वेल. तो साइन हो, कॉस हो, टैन हो एंड सो ऑन, हार्डली मैटर. इफ दिस इज थीटा, express the angle theta as the multiple of pi by 2. A very important first step. Whatever angle is given, express that as a multiple of pi by 2, where alpha is some acute angle and it is among your standard table. 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और इवन 0 एंड 90 डिग्री ऑल्सो. तो हमेशा आप एंगल को इस तरह से लिख पाएंगे. I will take the example, then it will be more clear. So whatsoever angle theta is given, आपने उसे x से लिख दिया. अब सब कुछ डिपेंड कर रहा है इस n के ऊपर. To begin, n अगर even है, n अगर odd है. तो if n is even and if n is odd, what is the change? वो क्या situation हो जाती है? If n is even, sine will remain the sine only, cos will remain the cos only and so on. तो बाकी मैं नहीं लिख रहा, बट वो ऑब्वियस है. tan will remain tan and so on. But if n is odd, अब इस केस में क्या हो जाता है? odd के केस में sin will interchange with cos and vice versa. vice versa मतलब अगर cos में है, it will change into sin. Similarly, tan की अगर मैं बात करूं, it will get changed into cot, and if I talk about secant, it will get changed into cosecant. But there is one very important thing. I left the space. There is a reason. यहाँ there will be a plus minus. अब वो प्लस रहेगा या माइनस, that all depends on our angle theta. थीटा किस क्वाड्रेंट में टर्मिनेट हो रहा है? इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड अकॉर्डिंगली उस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, तो वो फिर यहाँ रोल आएगा उस कंसेप्ट का. मींस ASTC all positive, sine and its reciprocal positive in second quadrant, third में tan and cot positive, fourth में cos and secant positive. I give more preference and weightage to understanding of this particular concept because in 12th also you have large number of questions in various chapters जहां पर ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन का बेसिक फंडामेंटल स्टेप है. एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस चीज को अगर नहीं समझा और इग्नोर कर दिया, यू विल बी सफर नॉट ओनली इन 11th 12th में भी बहुत दिक्कत आएगी. तो इसीलिए प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. फिर मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा कि ये प्लस माइनस और इसका या एन इवन है या ऑड है, ये कैसे लिखते हैं, हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प मी टू गेट द वैल्यूज. सो आई विल stop only for a minute. You may take the screenshot or please make a note of it. And at the same time, please mark your attendance in the chat box. Mark your attendance quickly. And do not repeat marking your attendance. 1P is sufficient. अनुज आप 2 बार मत करो, एक बार कर दिया, that is okay.
So I assume you have made a note of this, whatever is written and then presented on your screen, क्योंकि अब इसकी एप्लीकेशन की अब हम बात करेंगे. I'll directly start with the example. Find the value of sine 31 pi by 3. Now, initially, if you find yourself comfortable using angle in degrees, that is okay. Means to get this value, I can convert this into degrees. This is not the essential step. और धीरे धीरे तो मैं बिल्कुल उसको अवॉइड करूंगा कि हम डिग्री में चेंज ही नहीं करेंगे. तो पाई बाय 3 को चलो 60 डिग्री ले लिया और 31/6 का कितना हो गया, 1860 हो गया. ये 1860. अब क्या रूल आपको बताया है, बहुत ध्यान से समझिए. ये मेरा एंगल थीटा है. थीटा को आपको एक्सप्रेस कैसे करना है, मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2. तो अभी के लिए चलो मैं 90 लिख देता हूं, 90 डिग्रीज. तो 90 डिग्रीज में लाने के लिए ऑफ कोर्स मुझे इसे डिवाइड करना पड़ेगा 90 से, एक आइडिया लेने के लिए. तो किसके ऊपर ये पहली वैल्यू जाएगी, ये, एंड आई लेफ्ट विद 60. डिवीजन को दिखाना ये कंपल्शन नहीं है. आई कैन ऑलवेज राइट 1860. कॉमन ऑब्जर्वेशन था कि 60 डिग्रीज को अगर मैं डायरेक्ट अलग कर देता 1800 बचता, और 1800 को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 इंटू 20. Is this step is clear? Please make it sure, क्योंकि this is again and again I'm repeating very important step, कि अपने एंगल थीटा को इस तरह से स्प्लिट करके लिखना. अब क्या बताया था, वंस दिस इज डन 90 इंटू n, ये मेरा इवन है या ऑड है. ओके चलिए ठीक है, चेक करते हैं इसे. दिस इज इवन. यस सर. अब अगर ये इवन है तब मैंने क्या बताया था कि साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, एंड सो ऑन. तो सीधा ये लिखा जाएगा साइन अल्फा, साइन 60 डिग्रीज. बट इससे पहले क्या आएगा, प्लस माइनस. थ्रू आउट मैंने कहा था, रिमेंबर दैट, कि प्लस माइनस बिल्कुल ध्यान रखना है कि प्लस माइनस, और क्योंकि n मेरा इवन है, साइन विल रिमेन दी साइन ओनली. अब फाइनल चीज बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है फिर से, कि भाई ये प्लस लेना है या नेगेटिव. मेरा एंगल क्या था, एक्चुअल एंगल ये था 1860 डिग्री, विच इज एक्चुअली नाउ 20 इंटू 90. 90 के 20 राउंड्स चला दो, 1 2 3 4. ऑफ कोर्स 4 राउंड्स के बाद वी विल बी बैक. 8 rounds, 12 rounds, 16 rounds, 20 rounds. I will be here only. तो आपको सारा शो नहीं करना है, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि अगर 4 राउंड के बाद आई एम कमिंग बैक, तो 4 के मल्टीपल्स पे वापस मैं वहीं पहुंच जाऊंगा. और अब यहां आने के बाद मुझे क्या करना था, प्लस 60 डिग्री. प्लस 60 का मतलब थोड़ा सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां आ गया. आई एम नाउ फाइनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, क्वेश्चन को पढ़ो. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब वैल्यू पॉजिटिव होती हैं. यू आर रिक्वायर्ड आंसर. The alternative way could be, मैं मतलब अगर इसको डिग्रीज में चेंज नहीं भी करता, इसे भी ध्यान से समझिए, क्योंकि जनरली मैं रिकमेंड ऐसे ही करूंगा
आपको भी समझ आ जाएगा कि ऐसे अल्टीमेटली इजी है। साइन ऑफ 31 को जरा 3 पे डिवाइड करो, 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 10 पॉइंट समथिंग का मतलब 10 तो कंप्लीट निकल गया। पाई था यहां साथ में, तो 10 पाई तो कंप्लीट निकल गया। कितना बचेगा? 1 बचा था। 1 माने 1 इंटू पाई। चेक इट आउट, यू टेक द एलसीएम एंड क्रॉस चेक। यही आ रहा है एलसीएम लेने के बाद 31 Yes, पाई sir. बाई 3 ओनली। सो दिस इज द ओनली स्टेप विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। और उसके बाद 10 पाई, ऑब्वियसली 10 पाई जो है वो आपका 20 इंटू क्या लिख सकता हूं, पाई बाई 2, दैट इज 20 इंटू पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 मतलब तो 90 डिग्री हो गया ना। तो दिस इज अगेन वही आइडिया, इवन आ गया, एन इज इवन। इवन के केस में साइन का साइन रहेगा विद प्लस माइनस। और फिर जैसे हमने यहां क्वाड्रेंट रूल से सोचा था, इस एंगल को, इट इज लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, हेंस इट इज ओनली पॉजिटिव, योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इनिशियली सिर्फ मैं कहता हूं कि अगर आपको डिग्री में चेंज करके सोचना है कर लीजिए, बट अल्टीमेटली इट इज ऑलवेज हाईली रिकमेंडेड टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ रेडियंस। 12th में तो हम डिग्रीज में एक तरह से जनरली बात ही नहीं करेंगे, सिर्फ सब चीजें रेडियन में ही स्टडी होता है। Any doubt in getting this particular value? सर आपने पहले मेथड में जो आपने ग्राफ का बताया है राउंड्स का, वो क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा एक बार रिपीट कर दो। आपके पास 1860 डिग्री है जो मुझे जाना है ये एंगल कहाँ लाई करता है। तो 1860 डिग्रीज के लिए हम ये लिख चुके थे। तो अब आप चेक करिए, इट इज 20 इंटू 90 डिग्रीज। ये डिवाइड करके मैंने ऑब्जर्व कर लिया था। तो 20 इंटू 90 का मतलब क्या है, 90 के 20 राउंड लिए हैं, 90 इंटू 20 राउंड ले लिए। तो 90 के 20 राउंड लेना जरा, ये 90 हो गया, 180, 270, 360। हर 2 पाई के बाद, या ये कहो 360 के मल्टीपल पर, आई एम बैक जहां से मैं शुरू हुआ था। तो ये तो मैं कितना चला हूं अभी, आउट ऑफ 20 राउंड्स मैं 4 राउंड चल चुका हूं। दोबारा से चलो, हो गए 8 राउंड्स। फिर दोबारा चलो, 12 राउंड्स, 16 राउंड्स, एंड अगेन 20 राउंड्स पे वापस यहां पहुंच गया जहां से शुरू हुआ था। तो अब 20 राउंड्स मेरे पूरे हो चुके हैं। अब मुझे इसके आगे प्लस कितना जाना है, 60 डिग्रीज। तो प्लस 60 का मतलब ऊपर की तरफ आ जाएंगे 60 डिग्रीज, और ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया। तो ये एक्चुअल में जो एंगल बना है ये वाला, this angle will actually refer to as equivalent to my angle of 1860 degrees. तो हम आ चुके हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहां साइन पॉजिटिव होता है। लेट मी टेक 1 or 2 more questions, तब थोड़ा सा और बेटर आपको क्लियर होगा। Before I take this question, I would prefer you to understand and make a note of these 3 formulas. Because they are going to help me in getting these values quite easily. So these are 3 formulas. इनके रेसिप्रोकल का आप अपने आप रिलेट कर सकते हैं, सिमिलर एक्सप्रेशन आ जाता है। क्या मतलब,
सर। सीकेंट ऑफ माइनस एक्स की अगर बात करूंगा वो एकदम से सीकेंट एक्स हो जाता है, बाकियों में नेगेटिव ही आएगा। तो अगर मैं एक चीज समझ ये नहीं आई कि cos माइनस एक्स है, ये हमारा cos एक्स में चेंज हो जाता है, बट ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि वो हर एक में हो। जैसे फर्स्ट वाले में सब होते हैं पॉजिटिव, सेकंड वाले में हमारा सिर्फ साइन होता है। वी आर नॉट सी, यहाँ मैंने एंगल एक्स नहीं लिखा है, नेगेटिव एंगल की बात हुई है, और प्रूफ ऑफ दीज रिजल्ट्स आर नॉट इन आवर सिलेबस, वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट। तो आपको सिर्फ ये समझना है कि कॉस में अगर -30 डिग्री लिखा है, इट विल बिकम cos 30 डिग्री। cos ऑफ -1070 डिग्री लिखा है, इट विल बिकम cos ऑफ 1070 डिग्री। बट अगर यही चीज साइन के अंदर लिखी होती तब माइनस बाहर आ जाएगा एंड आई विल गेट दिस। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज फार्मूलाज इज रिक्वायर्ड। तो लर्न दिस फार्मूला और फिर आपको क्वेश्चन का मतलब समझ आएगा। ओके सर। Because there are about 50 formulas in trigonometry, so we cannot talk about the proofs of those formulas at all. So वो है, those who are interested they can check out in RD RS और जो reference books में, every reference book is giving the proofs of these results. So if you are really interested to know कि ये माइनस अचानक से कहाँ गया, please refer to the reference books. राइट, एग्जाम में वो नहीं आएगा एंड देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ टाइम आल्सो, तो इसीलिए प्रूफ्स को हम नहीं लेंगे, तो हम सिर्फ इनकी एप्लीकेशन की बात करेंगे। कंसीडर दिस क्वेश्चन, बैक टू दिस। तो पहला ही स्टेप क्या हो जाएगा, कैन आई राइट लाइक दिस, ये तो क्वेश्चन एक्चुअली ये था। अब मैंने क्या कहा, आपको इस एंगल को 90 के मल्टीपल में अलग करना है। सोचिए जरा क्या आएगा यहां, फिल इन द ब्लैंक्स में। वो सोचने के लिए एक्चुअल में हम क्या करेंगे, 90 से इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, किसके ऊपर जाएगा, 18। चलो पहले 1 के ऊपर गया, ठीक है, तो 1 के ऊपर मतलब कितना आ गया, बेसिकली ये 90, सब्ट्रैक्ट करा, यहां कितना आ जाएगा 8, और फिर कितना आ गया ये 19। ये तो कंप्लीट आ चुका है। इसका मतलब कैन आई राइट लाइक दिस, कुछ भी नहीं बचा का मतलब क्या है, 0 डिग्री। तो नॉर्मल डिवीजन तो आई एम एज्यूमिंग कि एवरीवन कैन डू, तो वो डिवीजन से ये सोचना है। तो 18 अभी किसी ने बोला, चलो वो एक आइडिया लग गया था कि इट इज 18 प्लस समथिंग, बट वो एक्चुअल में अगर 90 डिग्री ही आ रहा है, आई शुड गो बियॉन्ड 18 और इसलिए 19 पे एग्जैक्ट जा रहा था। अब रूल की बात करते हैं। रूल में पहले क्या सोचना है, n के बारे में, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, सॉरी इवन और ऑड, ऑड। ऑड के केस में रूल याद करो, मैंने क्या बताया था, कॉस का क्या हो जाता है, साइन, प्लस माइनस साइन, साइन हो जाता है। लिस्ट देख लो, आपके सामने होनी चाहिए कि कॉस का अगर n ऑड है तो साइन हो जाएगा, ये एंगल एज इट इज लिख दो विद प्लस माइनस। यहां तो बाई चांस क्या हुआ, साइन 0 कितना होता है, 0, तो 0 के साथ प्लस हो या माइनस हो, ये तो ऑलरेडी 0 ही आ जाएगा। योर रिक्वायर्ड आंसर। सर इसे एक बार रेडियन में भी करें। सर इसे एक बार रेडियन में भी करें। हाँ कर सकते हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो रेडियन में। एक ही क्वेश्चन पे हम वैसा नहीं करते ना, लेट से मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इफ आई लेट्स से इफ यू आर वांटिंग दिस क्वेश्चन टू बी डन इन रेडियन, अगर डिग्रीज में दिया है तो आप डिग्रीज में सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे अगर आप वैसे सोचें लॉजिकली, प्रैक्टिस से देखो आपको क्या आइडिया लगता है।
360 के मल्टीपल्स के ऊपर वैल्यू रिपीट होनी शुरू हो जाती है एंगल की। व्हाट डज दैट मीन? 360 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या होता है? 720, और नेक्स्ट क्या होता है? 1080 डिग्रीज। कम से कम इतनी वैल्यूज पे हमें याद हो रहा है कि वैल्यू रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। 765 को क्या लिख सकता हूं मैं? 720 डिग्रीज प्लस 45 डिग्रीज। यस सर। अब आपकी चॉइस है, जैसा आप चाहते हो कि चलो रेडियन में 720 इज एक्चुअली 4 पाई। 360 कितना होता है? 2 पाई, तो उसका डबल हो गया। तो यस सर। 4 पाई प्लस 45 डिग्री क्या होता है? पाई बाय 4। और अब आप ध्यान से सोचिए, मैंने एक सिंपल रूल बता दिया था, साइन ऑफ 2n पाई प्लस एल्फा सिंपली साइन अल्फा हो जाता है। चेकआउट योर लिस्ट, जो मैंने जब पहला स्टार्ट करा था, जहां से सबसे पहली चीज मैंने ऊपर ये लिखी थी, 2n Yes, पाई sir. के मल्टीपल पे वैल्यू सेम आती है। तो 4 पाई को ऑब्वियसली मैं 2 इंटू 2 पाई लिख सकता हूं। तो 2n पाई का मल्टीपल आ गया, इसका मतलब इट विल बी ओनली साइन पाई बाय 4, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। हाँ, नॉट Yes, इट इज sir. नॉट 1/2। नहीं, आंसर एक बार प्लीज सभी ध्यान से देखिए। सर रेडियन के केस में हम प्लस माइनस वाले रूल्स फॉलो करते हैं? बिल्कुल करते हैं, इवन में भी ऑड में भी। बट यहां पर आप चेक करिए, मैंने इस बेसिक फार्मूला को यूज कर लिया है, एंड व्हेन दिस फार्मूला इज यूज्ड, यहां पर आपको प्लस और माइनस देखना ही नहीं होता। तो डिपेंड्स कि अगर क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला इजीली एप्लीकेबल दिख रहा है। अगर मान लीजिए, चलिए आपने जो पूछा मैं उसके हिसाब से भी चल लेता हूं। मैं इसी क्वेश्चन को ऑल्टरनेटिवली थोड़े से दूसरे वे से करके दिखाता हूं। कैसे? इस स्टेप के बाद लेट मी नॉट गो फॉर दिस, वैसे ये इजी है बट स्टिल वो प्लस माइनस का आपने पूछा है, तो मैं इस 4 पाई को क्या लिख सकता हूं? सोच के देखिए, आपको पाई बाय 2 का मल्टीपल अलग करना है। कैन आई से दिस इज 8 इंटू पाई बाय 2? Yes, sir. अब ये इवन है, इवन के केस में साइन का साइन ही रहेगा विथ प्लस माइनस। अब आप जरा ये 8 इंटू पाई बाय 2 सोच के देखो, जब आप चलते 8 इंटू पाई बाय 2 का मतलब क्या है? ये Positive रहेगा. 4 राउंड हो गए, फिर 8 राउंड हो गए, और मैं फिर वापस आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सो ईदर यूज दिस अप्रोच और दिस अप्रोच। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि आप किस में ज्यादा कन्वीनियंट है। चेक आउट दिस 7th क्वेश्चन। यस, कोसिकेंट ऑफ -1410 डिग्री। पहली बात, क्या होगा इस नेगेटिव का? Negative ही रहेगा. यस, आपको ये फार्मूला बताया था। अगर ये एप्लीकेबल है तो सेम रूल मैंने कहा था इसके रेसिप्रोकल के साथ होता है। तो फर्स्ट स्टेप, माइनस बाहर निकाल दो। नेक्स्ट स्टेप, इस एंगल को 90 इंटू n प्लस एल्फा की फॉर्म में बताइए। तो ये फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा?
कितने के ऊपर जा रहा है ये अप्रोक्सीमेट बताइए? 15। 15 के ऊपर जा रहा है। यस तो 15 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 135 डिग्रीज। ओ सॉरी, मतलब 1350 आ रहा है या नहीं आ रहा है? एक बार देखिए। प्लस में कितना बच गया? 60 डिग्रीज। यस ये यहां पर 1 आना था लिखने में, ये गलती हो गई। हाँ ठीक है, तो ये एक डिवीजन से आइडिया लग रहा है। अब क्या रूल था? देखो ये माइनस तो एज इट इज बाहर चलते रहेगा थ्रू आउट। अब बहुत ध्यान से, इवन और ऑड का रूल, दिस इज ऑड। ऑड में क्या बताया था, क्या चेंज हो जाता है? कॉसिकेंड का क्या हो जाएगा चेंज? सेक। कॉसिकेंड का होगा सीकेंड। सेक। 60 डिग्री विद प्लस Yes. माइनस। अब प्लस लेना है या माइनस, वो सोच लेते हैं। वो कैसे सोचते हैं? माइनस। क्वाड्रेंट रूल। याद रखना, आप किसे देख रहे हैं? कोसिकेंड को। आप इस एंगल को सोचो, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 15 राउंड्स का मतलब क्या होता है? 4, 8, 12, यहां तक वापस 13th राउंड, 14th राउंड, 15th राउंड और प्लस 60 डिग्री। आप आ चुके हैं 4th क्वाड्रेंट में। और 4th क्वाड्रेंट में सीकेंड को नहीं देखना, क्वेश्चन मेरा कोसीकेंड था। 4th क्वाड्रेंट में कोसीकेंड क्या होता है? पॉजिटिव। नेगेटिव। नेगेटिव होता है। बाहर ऑलरेडी चलो एक माइनस साइन था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सीकेंड 60 डिग्रीज विच इज योर स्टैंडर्ड वैल्यू। cos 16 आपको पता ही है कितना होता है, उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, योर रिक्वायर्ड आंसर 2 के इक्वल आ जाएगा। यस। सो हमने कोसेक को क्यों देखा, सेक को क्यों नहीं देखा? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये सर बट वो उसी क्वेश्चन से ओरिजिनेट नहीं हुआ था ना, उससे नहीं हुआ है। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। नॉर्मली गलती यही होती है कि फिर हम क्या कहते हैं, सीकेंड को देखा, 4th क्वाड्रेंट में सीकेंड होता है पॉजिटिव। हमारा एंगल जो चल रहा था वो कोसीकेंड के रेफरेंस में था। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग हियर टू अंडरस्टैंड। तो मैं जब भी चेक करूंगा पॉजिटिव या नेगेटिव, यहां जो लिखा गया है उससे नहीं होगा, वो मेरे क्वेश्चन से डिसाइड होगा। ओके सर। चेक दिस आउट। बहुत ध्यान से समझते रहिए, 4-5 क्वेश्चन मिनिमम होते हैं तभी और बेटर पता चलेगा। तो अगर आपको लिखा है tan 19 π/3, अब डिग्रीज में मैं नहीं बात करूंगा। एनीवन कितने पे जा रहा है एग्जैक्ट? 19 को करो इसे डिवाइड, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, नहीं आएगा? यस सर। तो 6 तो अलग हो गया, 6 पाई। कितना बच गया? 6.3। डेसिमल में तो लिखना ही, सोचना ही नहीं है ना। ओनली 6 इज रिक्वायर्ड। अब जरा सोच के देखो, क्या मैं इसे ये लिख सकता था? टेक द रेसिप्रोकल, ओ सॉरी, टेक द एलसीएम एंड चेक। आ रहा है यही? यस सर। तो ये रिवर्स थिंकिंग आपको आनी चाहिए। सर ये हम डिग्री से बात करें रेडियन में? रेडियंस में ही कर रहा हूं। अब तो मैंने कहा ना कि वी विल बी डीलिंग इन रेडियंस ओनली। आई होप दिस इज ओके। पहला स्टेप डिवाइड करा माइंड में, और 6 पॉइंट समथिंग था, वो पॉइंट समथिंग को भूल जाओ।
तो 6 पाई के तो पूरे मल्टीपल आ गए, कितना बच गया वो लिख दिया, और वो एलसीएम से सोच सकते हैं अब रिवर्स में। एक वे सिंपल जो बता चुका हूं, tan ऑफ n पाई प्लस अल्फा या प्लस थीटा इज tan थीटा होंगी। अगर ये फॉर्मूला यहां लगा दूं तो ये n पाई लिखा हुआ है, तो दिस विल बी डायरेक्टली tan पाई बाय 3 tan 60 डिग्री, योर रिक्वायर्ड आंसर। अब यहां मुझे फिर प्लस माइनस नहीं सोचना, क्योंकि मैंने फॉर्मूला ही दूसरा अप्लाई कर दिया जो इजी और डायरेक्ट याद है। इनकेस मान लो मुझे ये फॉर्मूला याद नहीं है, तब आप वही जनरल रूल लगाते हैं, वो मैंने फिर वो यार बता देता, क्विकली याद दिलवा देता हूं। इसके बाद क्या लिखेंगे, 6 पाई को क्या लिखा, 12 पाई बाय 2 इंटू, यस या सॉरी 12 इंटू पाई बाय 2 और प्लस पाई बाय 3, ये आ गया इवन मल्टीपल। इवन में क्या बताया था, tan का tan ही रहता है विद प्लस माइनस। विच क्वाड्रेंट इज दिस एंगल लाइंग, 6 पाई प्लस पाई बाय 3। 6 पाई का मतलब क्या होता है, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, वापस आ गए, और प्लस फर्स्ट पाई बाय 3। क्वाड्रेंट। आई एम इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। आ गया यही वैल्यू। यस सर। टेल मी द वैल्यू ऑफ 9th क्वेश्चन। सोचिए अब जरा ध्यान से, आई एम वेटिंग। जब मैं कहूं आपको तब प्रेजेंट लिखना होता है, उसके अलावा मत लिखिए। Check out this question quickly. Sin minus theta is minus sin theta, ये अलग कर दिया। 11 पाई बाय 3, सोचिए जरा ध्यान से। सर 3 पाई तो होल नंबर में जा रहा है, हाँ 3 पाई प्लस प्लस 2 प्लस पाई पाई बाय बाय 3 2 पाई बाय 3। टेक द एलसीएम एंड चेक इट आउट। अब फिर एक रूल ना बहुत हेल्पफुल रहता है जनरली, और वो क्या है कि साइन आपको पता है 2 पाई के मल्टीपल के बाद रिपीट हो जाता है, तो आप इसमें से अगर 2 पाई को अलग कर दें, 2 पाई को सीधा अलग कर दिया, तो यहां सिर्फ पाई बचा, ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब ये किस क्वाड्रेंट सर में ये है, नहीं समझ आया क्या किया आपने। साइन 2 पाई के इंटरवल के ये फार्मूला याद जब तक नहीं होंगे बात नहीं बनेगी। साइन जो है 2 पाई के मल्टीपल के बाद वैल्यू रिपीट होनी शुरू हो जाती है, तो साइन 2 पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा। तो आपने 3 पाई को क्या मान लिया, 2 पाई प्लस पाई, 2 पाई प्लस पाई। 3 Yes, पाई को sir. लिख सकता हूँ, 2 पाई के अलावा जो भी लिखा है वो बच गया सिर्फ मेरा, 2 पाई एकदम से हट जाता है। यस सर। अब पाई को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू पाई बाय 2, वही इवन और चेक कर रहा हूं, 2 इज इवन। इवन का मतलब क्या बताया था, साइन का साइन ही रहेगा प्लस माइनस साइन। विद प्लस माइनस। बट अभी एक और प्रॉब्लम आ गई, आपको ये वैल्यू नहीं पता साइन 2 पाई बाय 3 की, डायरेक्ट नहीं पता, क्या करूं, 2 पाई बाय 3 कैन बी रिटन एज पाई माइनस पाई बाय 3।
टेक द एलसीएम। यस सर। सिंपल मैं एलसीएम को ले रहा हूं और अब विच क्वाड्रेंट इज दिस? पाई माइनस समथिंग, पाई माइनस समथिंग, वापस आ गया। माइनस का मतलब आई एम इन दिस सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, ये आ गया। और अब इस प्लस माइनस को कहां से डिसाइड करना था? मेरे मेन क्वेश्चन से। ये एंगल कहां लाई करता है ये सोचकर देखिए। ये वाला एंगल किस क्वाड्रेंट में है? थिंक अबाउट दैट। और उससे फिर आप डिसाइड करिए कि वो प्लस आएगा या माइनस। ट्राई आउट इन योर होमवर्क। एक्सक्यूज मी सर। यस सर मेरे को डाउट है, हमने सिंपल सा फॉर्मूला आपने जो लगाया ना इधर sin 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू sin थीटा, तो हम सिंपल से माइनस sin 2 पाई बाई 3 नहीं कर सकते थे? नहीं, वो नहीं हो सकता। आपको पहले तो थीटा पाई की टर्म में लाना ही पड़ेगा, उसके बाद हम ऐसे कर सकते हैं। पहला स्टेप यही करना रहेगा। और आप इस फॉर्मूला को अवॉइड करना चाहते हैं, कर दीजिए। आप डायरेक्ट इस चीज को फिर वही 3 पाई को लिखा 6 इंटू पाई बाई 2, वैसे भी कर सकते थे। दैट इज योर चॉइस। चलिए, वी हैव एक्सीडेड द टाइम, सो आप इतना बस अभी प्रैक्टिस कीजिए एंड मार्क योर अटेंडेंस क्विकली इन द चैट बॉक्स। एंड द फॉलोइंग आर द क्वेश्चंस फॉर योर होमवर्क। ये तो बुक का ही क्वेश्चन है और ये अब आपके होमवर्क में आएंगे। अटेम्प्ट ऑल दीज 5 पार्ट्स प्लस दीज 10 पार्ट्स। तो ये 10 पार्ट अगर आपने ढंग से सोच के कर लिए, the whole idea will be clear to you. So attempt these 10 parts in your homework. Sir, is trigonometric function coming in the first term? Yes. Okay, sir. Thank you, sir. Have a good day, sir. Good day. Thank you. Now you can leave the meeting. Yeah. Thank Thank you.